الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواہ مسلم۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، ساتھ ہی ساتھ اشرف المخلوقات بنایا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس دنیا کے اندر ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے اس طریقے کو سکھانے کے لیے اس زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں ان تمام نبیوں پر، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر، جس ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ حاضرین گرامی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت انسان انسانیت سے محروم ہو چکا تھا، لوگ حیوانیت کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے جب جوا عام تھا، شرک و بدعت کا بازار گرم تھا،
उस दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हैवान नातिक को बोलना सिखाया। बड़ों की इज्जत कैसी करनी है हमें उसकी तालीम दी। छोटों पर शफकत कैसे करना है हमें इस बात की ताकीद की। ज़ईफ़ों और कमज़ोरों और बेवाओं और यतीमों के साथ हमें किस तरीके से हुस्न सलूक करना है इस बात की हमें और आपको तालीम दी। हमें और आपको हम जिस माशरे और जिस समाज के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर हम और आप रह रहे हैं, उसमें हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे दोस्त और अहबाब भी हैं, हमारे आइज़ा और अकारिब भी हैं। गोया कि तमाम लोग उस माशरे के अंदर मौजूद हैं और हम तमाम लोगों के हुकूक को जानते हैं कि रिश्तेदार के हुकूक को हमें कैसे अदा करना है, वालिदैन के साथ हमें कैसे पेश आना है, अपने दोस्तों के साथ हमें कैसे रहना है। ये तमाम चीज़ हम और आप जानते हैं, लेकिन अफसोस हमें इस बात पर हो रहा है कि हम उस नबी के उस हुकूक को भूल गए जिस हुकूक को हमें और आपको याद करना चाहिए था। आज के इस खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं इसी मौजू पर आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हक बात बोलने की, कुरान और हदीस के मुताबिक बोलने की और हम तमाम लोगों को इस पर कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह तगाबुन आयत नंबर 8 तिलावत की है। खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा पढ़ी है बहुत ही मुख्तसर है। आइए मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर पहला हक क्या है। हमारे और आपके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे पहला हक है वो ये कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल तस्वुर करें। यह सबसे पहला हक है और यही वो चीज़ है, यही वो बात है जिसका हर मुसलमान इकरार करता है कलमे शहादत पढ़ते हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंसान कलमे शहादत पढ़ते हुए इस बात का इकरार करता है, गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। के लोगो तुम अल्लाह पर ईमान लेकर के आओ, फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान लाओ, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर ईमान लेकर के आओ जो हमने नाजिल किया है। और जो कुछ तुम कर रहे हो, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, जो कुछ तुम इस दुनिया के अंदर कर रहे हो अल्लाह तबारक ताला उससे बखूबी वाकिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अच्छी तरीके से जानता है जो कुछ इस दुनिया के अंदर तुम रह करके कर रहे हो। एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह आराफ आयत नंबर 158 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीतु फामिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी। कि ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल या अय्युहन नास, कि ऐ लोगो मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूँ। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसकी बादशाहत आसमान और जमीन के अंदर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, युही व युमीत, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को मौत देता है और लोगों को जिंदगी देता है। फामिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी, तो ऐ लोगो तुम उस अल्लाह पर ईमान लेकर के आओ और उसके रसूल उम्मी पर ईमान लेकर के आओ। अल्लज़ी युमिनु बिही, जो उस पर ईमान लेकर के आता है, वह कलिमातिही, और उसके इरशादात पर ईमान लाता है,
वत्तबिऊहु, और उसके आगे कहा कि तुम उसकी इत्तिबा करो, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम्हें हिदायत मिल जाए। गोया कि अगर हमें और आपको हिदायत पाना है तो जरूरी यह है कि हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, और इसी तरीके से जो रसूलुल्लाह लेकर के आए हैं उस चीज पर ईमान लाएं, यानी कुरान करीम पर ईमान लाएं। इस पर अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर कामयाबी चाहता है, आखिरत के अंदर अगर वो कामयाब होना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमूदात पर वो ईमान लाए, और इसके बगैर किसी इंसान के लिए नजात मौकूफ नहीं है। हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इख्तियार करे। और याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स आपको देख करके ईमान लाया है आप पर, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खुशखबरी दी है, और जो शख्स आपको नहीं देखा, बगैर देखे हुए आप पर ईमान लेकर के आया है, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मर्तबा खुशखबरी दी है। मुस्नद अहमद की रवायत है, हजरत उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूबा लिमन रआनी व आमन बी व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी, कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो मुझे देखा और देख करके ईमान लाया, वतूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी, और खुशखबरी है उस शख्स के लिए, 7 मर्तबा खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जो मुझे नहीं देखा उसके बावजूद मुझ पर ईमान लेकर के आया। तो गोया ये कि हमारे और आपके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 7 मर्तबा बशारत दी है, 7 मर्तबा खुशखबरी दी है, क्योंकि हम और आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे हुए आपके कलमे को पढ़ा, आप पर ईमान लाए, और आपको हमने जाना और पहचाना, और आपकी तालीमात पर हम और आप अमल कर रहे हैं। ये खुशखबरी हमारे और आपके लिए है। हम लोग बड़े ही खुशनसीब इंसान हैं हजरात गिरामी। और जो शख्स आप पर ईमान नहीं लाता है, आप पर अगर वो ईमान नहीं लाता, वो यकीनी तौर पर वो जहन्नमी है। मुस्लिम की रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बिअहदिन मिन हाज़िहिल उम्मह यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत का कोई भी शख्स, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो नसरानी हो, कोई भी शख्स हो, अगर वो मेरे बारे में सुने और मुझ पर ईमान न लाए, और उस चीज पर अगर वो ईमान नहीं लाता है जिसको मैं दे करके भेजा गया हूं, यानी बगैर ईमान लाए हुए अगर उसका इंतकाल हो जाता है, इस दुनिया से वो रुखसत हो जाता है, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, तो ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा। बगैर ईमान लाए हुए आपकी शरीयत पर किसी इंसान, कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर, आपकी रिसालत पर ईमान लाना हर शख्स के लिए वाजिब और जरूरी है। हजरात गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम और आप बंदा इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर खुद बंदा कहा है। आप सूरह असरा पढ़िए, आयत नंबर 1 पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। और यही चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कहते हैं। मुस्नद अहमद की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना अब्दुन फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलु, कि लोगों मैं एक बंदा हूं, फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलु, तो तुम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही समझो। इसलिए जब हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल समझेंगे, तो अल्लाह के दरमियान में और रसूलुल्लाह के दरमियान में जो फर्क है वो फर्क वाज़ेह हो जाएगा। आज के इस मौजूदा जमाने में लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में, हम्दो सना में इस तरीके से
बड़ाई और किबरिया इस तरीके से मुबालगा आराई करके काम लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकाम और मर्तबे तक पहुंचा देते हैं। कहा जब तुम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल समझोगे तो अल्लाह के दरमियान में और रसूलुल्लाह के दरमियान में जो फर्क है वो फर्क वाज़ेह हो जाएगा। तो ये हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल तस्वुर करना। अब आइए दूसरी चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि दूसरा हक उम्मत पर क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूसरा हक यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौकीर की जाए, आपकी इज्जत की जाए, दिलो जान से आपका एहतराम किया जाए। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हयात मुबारका ही में सहाबे कराम को इस बात की तलकीन की गई कि तुम तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करो और अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो। अगर तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद करते हो तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बाज़ा, कि लोगों तुम रसूलुल्लाह को इस तरीके से मत पुकारो, ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बाज़ा, जिस तरीके से तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सूरह हुजरात आयत नंबर 2 पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कज़हरि बअदिकुम लिबाज़ अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। के लोगों जो ईमान लेकर के आए हो, जो ईमान की दौलत से मालामाल हुए हो, जो ईमान की दौलत से मालामाल हुए हो, तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कज़हरि बअदिकुम लिबाज़, और जिस तरीके से तुम आपस में एक दूसरे से ऊंची आवाज में गुफ्तगू करते हो, नबी के सामने इस तरीके से बात ना करना वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें एहसास तक भी नहीं चलेगा कि मेरे अमाल कैसे बर्बाद हो गए। हजरात गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर करने के लिए सहाबे कराम को यह तालीम दिया जा रहा है कि तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची मत करना वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। इस आयत करीमा के मुतालिक, इसके शान नुज़ूल के मुतालिक हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बनु तमीम का काफिला, ये आयत करीमा नाज़िल होने से पहले बनु तमीम का एक काफिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां मौजूद थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि इस काफिले का जो अमीर होगा वो हजरत काका बिन माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नहीं, बल्कि इस काफिले का जो अमीर होगा वो हजरत अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। यानी दोनों के दरमियान में बहस तकरार हो गया और आवाजें बुलंद होने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सामने वहां मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाज़िल किया उसी वक्त कि लोगों जो ईमान लेकर के आए हो, तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब यह आयत करीमा नाज़िल हो गई, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर पस्त आवाज में बात करते थे, इतनी हल्की आवाज में बात करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा पूछना पड़ता था कि आपने क्या कहा है। ये आलम था, फौरन उस पर अमल किया कि अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करना वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी पस्त आवाज में वो बातें करने लगे कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा पूछना पड़ता था कि आपने क्या बात कही है। और इसी आयत करीमा के मुतालिक हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं कि जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई तो हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि बहुत ही मशहूर सहाबी हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आना बंद कर दिया। किस वजह से? कोई झगड़ा था क्या? कोई जाती मफाद था क्या?
कोई जमीन और जायदाद का झगड़ा था क्या? नहीं मेरे प्यारे साथियों, बल्कि आप आगे की जो वाकयात, जो जुमले सुनेंगे, आप उस वाकयात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई, हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आना बंद कर दिया, छोड़ दिया। कुछ दिन गुजर गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जब हजरत साबित बिन कैस का दीदार नहीं किया, उनको नहीं देखा, पूछा कि साबित बिन कैस कहाँ हैं? एक शख्स खड़ा होता है, कहता है कि अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मुझे परमिशन दें, तो मैं जाता हूं, उनका हाल लेकर के आता हूं। मुस्लिम की रवायत के मुताबिक यह मालूम होता है कि वो जो सहाबी साबित बिन कैस का हाल लेने के लिए गए थे, उनका नाम साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और ये उनके पड़ोसी थे। मेरे प्यारे साथियों, जब इनको इजाज़त मिल गई, हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आवाज आती है अंदर आ जाइए। वो अंदर जाते हैं, क्या हाल देखते हैं कि वो परेशान हाल बैठे हुए हैं, चेहरे की रंगत बदली हुई है, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, वो परेशान हैं। हजरत साद बिन मुआज पूछते हैं, क्या है साबित बिन कैस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आना क्यों बंद कर दिया, क्या वजह है? हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, साद, मेरे अमाल तो बर्बाद हो चुके हैं, मेरे अमाल तो अब अकारत हो चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची है, बुलंद है। इसलिए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाना बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो मैं कोई लफ्ज़ बोल दूं, कोई जुमला बोल दूं और मेरी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद हो जाए और मेरे अमाल ज़ाया हो जाएं और मैं जहन्नम वालों में से हो जाऊं। हजरात गिरामी, जब ये जुमला हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते हैं, भाग करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और ये वाकया उनके सामने रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, साद बिन मुआज को दोबारा लौटाया कि जाओ उन्हें खुशखबरी दो, वो जहन्नमी वालों में से नहीं बल्कि जन्नत वालों में से हैं। जन्नत की सर्टिफिकेट दुनिया के अंदर मिल गई। हजरात गिरामी, इन दोनों वाकयात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहाबे किराम किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और उनकी तौक़ीर किस तरीके से करते थे। आप इसका अंदाजा इस वाक़े से लगा सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन लोगों के मुतालिक इन्हें खुशखबरी दी है, इन्हें कामयाबी का सर्टिफिकेट दिया है। फरमाया, फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि जो लोग इन पर ईमान लेकर किया है, फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु, और उनकी ताज़ीम और तौक़ीर की, वनसरूहु, और उनकी मदद की, वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और उनकी इत्तिबा की और उस चीज की भी इत्तिबा की जो उनके साथ नाजिल किया गया, यानी कुरान करीम की। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो जब इन लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही वो लोग हैं जो कामयाबी होने वाले हैं। और हजरात गिरामी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम लोगों ने नहीं किया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद लोगों ने नहीं किया? इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान में एक कंपटीशन हो गया। ग़ज़वे खंदक का मौका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान में ऐलान किया कि लोगों के पास जो कुछ है वो माल लेकर के आए और यहाँ जमा करे, क्योंकि मैदान जिहाद में जाना है, हक और बातिल का मार्का है, लड़ाई है, जिहाद में निकलना है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उस वक्त काफी माल था, वो जायदाद और प्रॉपर्टी वाले थे। दिल में खुश हो गए, सोच करके ये खुश हो गए कि आज मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे बढ़ जाऊंगा, नेकियों को कमाने में उनसे आगे निकल जाऊंगा। वो फौरन अपने घर की तरफ आते हैं, पूरा सामान इकट्ठा करते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, दो हिस्सों में उसे बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ देते हैं और एक हिस्सा उठाकर लेकर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा, अल्लाह के रसूल, माल को दो हिस्सों में तकसीम किया, घर का जितना माल था एक हिस्सा आपके लिए ले आया हूं और एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ आया हूं। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवारी पहुंचती है, वो भी लेकर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में डाल देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सवाल करते हैं कि अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? जवाब क्या था?
हजरत गिरामी जवाब दे, रसूलुल्लाह मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ करके आया हूं। जरा तसव्वुर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किस तरीके से इन लोगों ने मदद किया, चाहे वो जानी मदद हो या इसी तरीके से चाहे वो जिस्मानी मदद हो या माली मदद हो, जिस तरीके से भी उनसे वो हो सका उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। और ऐसे लोगों के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुशखबरी दिया कि यही वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत है, यही वो लोग हैं जो कामयाब पाने वाले हैं, कामयाबी पाने वाले हैं और दुनिया के अंदर भी वो कामयाब हुए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कौन नहीं जानता है। हजरत गिरामी ये 22 लाख मुरब्बा मील पर इन्होंने हुकूमत किया, आपके इस हिंदुस्तान से 10 गुना ज्यादा। ये मामूली बात नहीं है। बगैर इंटरनेट और बगैर फोन के उस जमाने में उन्होंने वो मिसाल कायम की, रहती दुनिया तक। आज अगर आप पूरी इंसानियत की तारीख का मुताला कर डालिए तो आपको ऐसी मिसाल आपको नहीं मिल सकती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को इज्जत दिया दुनिया के अंदर। और अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर और ताज़ीम अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस तरफ लेकर चलना चाहता हूं। सुलह हुदैबिया का मौका है। हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कभी ईमान नहीं लाए थे, कुरैश का नुमाइंदा बन करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। और जब वो मंजर देख करके सहाबे किराम किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर करते हैं, ये मंजर जब देख करके जब अपनी कौम की तरफ लौटते हैं, अपनी जमात और अपने गांव और अपनी बस्ती की तरफ जाते हैं तो तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं और सब लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं, ऐ कौमी वल्लाहि लक़द वफ़लु वल्लाहि वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नज्जाशिया, कि ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की कसम मैं बड़े बड़े बादशाहों से मिल चुका हूं, मैं कैसर और किसरा जैसे बादशाह से भी मिला हूं, मैं नज्जाशी जैसे बादशाह से भी मुलाकात कर चुका हूं, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा, वल्लाहि इन रायतु मलिकन क़त्तो, अल्लाह की कसम मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा, युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा जिसके साथी उसकी इतनी इज्जत करते हो जितनी इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनके करते हैं। मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा। मैं बड़े बड़े बादशाहों से मिलकर के आया हूं, कैसर और किसरा और नज्जाशी जैसे बादशाह को भी देखा हूं, लेकिन यह मंजर मैंने वहां नहीं देखा, नज्जाशी के दरबार में मैंने यह मंजर नहीं देखा। जो मंजर में देख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मंजर मैंने वहां देखा, सुलह हुदैबिया के मौके पर जो मैंने देखा है, कहा रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह की कसम मैंने यह मंजर कहीं भी नहीं देखा। उसके बाद में हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने यह मंजर भी देखा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो थूकते हैं, अगर उनके जिस्म से लुआब निकलता है, अगर वो जमीन पर थूकते हैं तो वो थूक जमीन पर नहीं गिरता बल्कि जाकर के किसी सहाबी के हथेली पर जाकर के गिरता है और वो उस थूक को वो अपने जिस्मों पर मल लेते हैं और अपने चेहरों पर मल लेते हैं। कहा अल्लाह की कसम मैं ये मंजर देख कर के आया हूं कि अगर वो वजू करते हैं तो वजू का अगर जो पानी बच जाता है उस पानी को हासिल करने के लिए तमाम सहाबे कराम आपस में लड़ पड़ते हैं, उस पानी को हासिल करने के लिए एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। कहा मैं ये मंजर देख करके आया हूं। कहा अल्लाह की कसम मैं ये मंजर भी देखा हूं, वहां मैंने ये मंजर भी देखा कि अगर रसूलुल्लाह कोई हुक्म जारी करते हैं तो उस हुक्म पर फौरन अमल किया जाता है। कहा और ये मंजर भी देखा हूं कि अल्लाह की कसम वो सहाबे कराम अपनी नजरों को ताजीम की वजह से, इज्जत और तौकीर की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी नजरों को नजरों से नहीं मिलाते। ये उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जब अपनी कौम की तरफ लौट कर जाते हैं तो एक ये मंजर लोगों के सामने पेश करते हैं, बाद में ये ईमान ले आते हैं। हजरत गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। ताजीम और तौकीर का तकाजा यह है कि हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को आम करें। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक दीन पहुंचाया है उस दीन को लोगों तक पहुंचाएं और शिर्क और बिदात के खिलाफ हम आवाज बुलंद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की तालीम दी है
वो चीज हम करें, और जिन चीजों से हमें मना किया है ऐसी चीज से हम और आप बाज आ जाएं। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौकीर। वरना बहुत सारे लोग तो आपसे ये दावा करेंगे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौकीर करते हैं, लेकिन वो अमल के मैदान में बिल्कुल नंगे होंगे, बिल्कुल कोरे होंगे। हजरात गिरामी, इन तमाम चीजों को हमें और आपको मद्देनजर जरूरी है, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौकीर करें, और साथ ही साथ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कानून और साबिते को भी अपनी जिंदगी के अंदर लागू करें। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लोग इस तरीके से मुबालगा आराई करके, आपकी तारीफ और तौसीफ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के मकाम और मर्तबे तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह के रसूल ने इस चीज से मना फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुल फक़ूलु अब्दुल्लाह व रसूलु, कि लोगों तुम मेरी शान में, मेरी तारीफ और तौसीफ में इस तरीके से तुम गुलू न करो, इस तरीके से मुबालगा आराई से काम न लो, जिस तरीके से नसरानियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया, यानी जिस तरीके से नसरानियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के मकाम और मर्तबे तक पहुंचा दिया, वो काम तुम ना करो, क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूं और तुम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो। जिन चीजों का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, उन चीजों का इख्तियार हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना दें। मिसाल के तौर पर हाजत रवा, मुश्किल कुसा, इसी तरीके से या गौस, ये तमाम चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जायज है। और यह आयत करीमा जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैबा वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकुन इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं गैब का इल्म जानता हूं, और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उस चीज की इत्तिबा करता हूं जो मेरी तरफ वही की जाती है, जो मेरी तरफ भेजी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोगों से कहिए कि क्या देखने वाले लोग और ना देखने वाले लोग क्या ये बराबर हो सकते हैं? तो लोगों, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं सोचते इस चीज के बारे में? हमें और आपको सोचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, तो हमें और आपको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही तसव्वुर करना चाहिए। तो ये दूसरी चीज हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौकीर की जाए। तीसरी चीज, आपसे मोहब्बत की जाए। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके अहलो अयाल हों, आपके घर वाले हों, आपका माल और जायदाद हो, आपकी बीवी और बच्चे हों, तमाम लोगों को एक तरफ कर दिया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक तरफ कर दी जाए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके आले औलाद पर, दुनिया की तमाम चीजों पर अगर गालिब आ रही है तो आप यकीनी तौर पर कामिल मोमिन हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन तमाम चीजों पर अगर गालिब नहीं आ रही है तो आप कामिल मोमिन नहीं हो सकते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासु मन कुन्ना फीहि वजदा हलावतल ईमान अन यकुन अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बुल मरा ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरहु अन यऊदा फिल कुफ्र बअदा इज़ अनक़ज़हु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन नार। कहा, अगर तीन चीजें लोगों के अंदर अगर पाई गई, तीन खसलतें अगर पाई गई, तीन आदतें अगर लोगों के अंदर पाई गई, तो वो ईमान की हलावत को, ईमान की चाशनी और ईमान की वो मिठास को पालेगा। फरमाया, पहली चीज ये कि अगर फरमाया सलासुन मन कुन्ना फी वजदा हलावतल ईमान अन यकुन अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अगर उसे मोहब्बत है तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत है तो अल्लाह की रिजा के खातिर होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि अगर एक शख्स ईमान लाता है, ईमान लाने के बाद उसे कुफ्र की तरफ लौटना ऐसे ही नापसंद हो जैसे कि उसे आग के अंदर डाला जाना नापसंद होता है। यानी ईमान लेकर क्या है तो ईमान पर वो डटा रहे, साबित कदम रहे, ईमान से वो न फिरे। अगर ये तमाम चीज अगर हमारे और आपके अंदर अगर पाई जाती है, यानी अगर मोहब्बत हो, सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत हो अल्लाह की मखलूक में, तो सबसे ज्यादा हमें अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। और इसी तरीके से हमें कुफ्र की तरफ लौटना ऐसे नापसंद होना चाहिए जिस तरीके से आग में डाला जाना एक इंसान को नापसंद होता है। और एक दूसरी बात के अंदर हजरत अनस मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम
हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही, यहां तक कि मैं उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब न बन जाऊं, उसकी आल औलाद से, उसके माँ बाप से, उसके और तमाम लोगों से, दुनिया में जितनी चीजें पाई जाती हैं, यानी उन तमाम चीजों के बनिस्बत में वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत जब तक नहीं करता, कहा तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। हजरात गिरामी, हमें और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, हम लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ को पकड़े हुए थे। उसी दौरान हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, दुनिया में जितनी चीजें हैं मैं तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत आपसे करता हूँ, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर वल्लदी नफ्स बियदी वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, कहा कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ मेरी जान है, हत्ता अकूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिका, कहा यहाँ तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना बन जाऊँ। रसूल हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन कहा, अल्लाह के रसूल आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं, अल्लाह के रसूल आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा, मेरी जान से भी ज़्यादा आप मुझे महबूब हैं। हजरत गिरामी, अगर इस जान से ज़्यादा महबूब का अगर मंजर देखना है तो आप जंग बदर और जंग उहद का वाक़या आप देख सकते हैं, उसकी तरफ आप एक नज़र दौड़ा सकते हैं। हजरत गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोगो, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा और तुम पर रहम करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वाला है। और इसका मंजर एक शायर क्या है ज़बरदस्त, इसके मंजर कशी करता है, कहता है, तासिलिल्लाह व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हाज़ा ला उम्रुका फिल क़ियास बदीउन लौ कान हुब्बुका सादिक़न ला तातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन। कहता है, एक शायर कहता है कि तू अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, तासिलिल्लाह व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, तू अल्लाह की नाफरमानी भी करता है और तू उससे मोहब्बत का इजहार भी करता है। हाज़ा ला उम्रुका फिल क़ियास बदीउन, अरे ये तो महाल चीज है, ये तो नामुमकिन चीज है कि तू एक तरफ अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी करता है और दूसरी तरफ उसकी नाफरमानी भी करता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फरमाया, लौ कान हुब्बुका सादिक़न ला तातहु, कि अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू उसकी इत्तिबा करता, तू उसकी इताअत और उसकी फरमाबरदारी करता, क्योंकि इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन, कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है वो उसका पैरोकार होता है, उसका मुत्तबे होता है, उसकी बातों को मानने वाला होता है। हजरत गिरामी, एक वाकया मैं आपके सामने रख करके अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मोहब्बत का जज्बा देखिए, मैं आपके सामने इस चीज़ को रख करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, एक आदमी आया और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी आल औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने घर में होता हूँ तो मैं सब्र नहीं कर पाता हूं यहां तक कि आपको देख ना लूं। आपको देखने के लिए मैं अपने घर से चला आता हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का अंदेशा है, मुझे इस बात का खौफ है कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, आप जब इंतकाल कर जाएंगे, इस दुनिया से जब आप चले जाएंगे तो आप तो जन्नत के अंदर चले जाएंगे, आप नबियों के साथ में होंगे, बड़े बड़े फरिश्तों के साथ में होंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल, अगर मैं भी जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो मैं वहां आपको नहीं देख सकूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा आयत नंबर 69 नाजिल कर दिया और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह हुक्म देकर के भेजा कि जाओ मेरे बंदे को खुशखबरी सुनाओ।
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ومن يطع الله والرسول، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انعام نازل کیا ہے، اور یہ لوگ جنت کے اندر من النبیین، نبیوں کے ساتھ میں ہوں گے، والصدیقین، اور سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے، والشہداء، اور اسی طریقے سے شہیدوں کے ساتھ میں ہوں گے، اور یہی لوگ ان کے بہترین ساتھی بنیں گے۔ حضرات گرامی، یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اس دنیا سے جائیں، تو تیرے اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔